So Namaskaram students. Let's start with study note 3, return of income. From here onwards, we are going to learn everything from CMA final module. So I'm going to teach you from CMA final module, study material given by institute. You have to take this particular study material with you. If you have not registered as soon as possible and read it from your module. Because many a time it has been seen that sometimes they directly target questions or concept directly from study material. So far as direct tax is concerned, it's vast subject, my dear friends. Vast means it is unlimited. There is no limit to this particular subject. I am studying this subject for last 12 years, but even today I cannot say with 100% confidence that I know everything about income tax. In fact, every faculty who has been studying this subject for 30 years, 40 years, even those people cannot say we know everything about it. So definitely this subject is, ocean in itself. We cannot touch upon every drop of it, but still we have to target maximum of it, because we should not be missing out on any particular provision which is mentioned by our module or study material. Therefore, the target is to teach you from study material. Apart from that, let me announce you one more thing. Right now, from this lecture onwards, I'm going to use two languages, English plus Hindi. Please check now. Deep, am I audible now? Deep, Vijay, everyone? Please check, please check. Okay. Yeah, whenever it happens, you please let me know. I can take a pause. Okay. So I'll be using two languages, my dear friends. Please understand, two languages are mandatory from now onward, because I'm teaching to my Mumbai students, and many of them have requested that I should be speaking in two languages. So please allow me to speak in two languages, Hindi plus English. So we can call it English lecture series. Okay. So आज हम चालू करने वाले filing of return chapter, filing of income chapter. This chapter is from CMA intermediate. It was there in intermediate level, but we have to study some more points, some more subsections at final level. So let's start. Yes. Just now I started, Pooja. Introduction. So first of all, you need to learn what are the forms that are there so far as filing of return is concerned. So there are all these forms. You can check on the portal of income tax, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, and ITR 7. Not only that, you need to remember which form is applicable to which type of assessee. So definitely, I'll show you the table. You have to remember that table. Apart from that, if question comes to your mind, whether filing of return is mandatory or optional, so because you have studied this law earlier, let me tell you, filing of return is mandatory. Filing of ROI, return of income, is mandatory in India. Sir, is it mandatory for all people who are having PAN? Answer is no. It is not mandatory for all. It is mandatory for company assessee. If you are a company assessee, it is by default mandatory. Whether you are having a 0 rupee income, positive income, negative income, doesn't make any difference. If you are a company, you have to file return mandatorily. Similarly, for firm including LLP, it is again mandatory to file the return. Unconditionally, it is mandatory to file return. For any other assessee, for any other person, please understand, for any other person, usually, okay, if your income is more than basic exemption limit, then only you have to file return mandatorily. Now here you need to see, please understand which income. So you need to know, this is the gross total income. That means total income before giving the effect of chapter 6A, and that too without giving effect of section 54 to 54 GB. So what is the logic behind this? If I have capital gain 1 crore rupees, and if I claim exemption under section 54 1 crore, my net taxable income will become nil. But am I supposed to file the return? Definitely answer is yes. आपको return भरना ही पड़ेगा. Why you have to file the return?
क्योंकि अगर मैंने रिटर्न भरा ही नहीं तो हाउ डिपार्टमेंट विल कम टू नो अबाउट इट कि बाबा मैंने जो इनकम कमाया है या मैंने जो एग्जम्पशन क्लेम किया हुआ है उसके सारे कंडीशंस कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए. So you need to check gross total income before giving effect of section 54 to 54 GB. और मैंने क्या बोला, this income should be more than basic exemption limit. अगर ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगा तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा. सर इतने लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है. इन 2016 अरुण जेटली सर ने अमेंडेड लॉ अमेंड किया फाइलिंग ऑफ रिटर्न का, एंड ही सेड अगर आपका कोई भी असेट, इफ असेसी इज होल्डिंग एनी असेट आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो और आपका कोई असेट आउटसाइड इंडिया है, या तो प्लीज अंडरस्टैंड आपका कोई साइनिंग पावर आउटसाइड इंडिया है, अगर आपका कोई साइनिंग पावर आउटसाइड इंडिया है, या आप बेनिफिशियल ओनर हो, बेनिफिशियरी हो फॉर द असेट विच इज विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो इन सारे केसेस में आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न होना मैंडेटरी है. क्यों मैंडेटरी है? ऑब्वियसली यू नो दैट लॉजिक. Now government of India is trying to gather maximum data about resident who are holding the asset outside India. इन लोगों को मैंडेट तो पहले से था. फिर 2020 में गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किया और 2020 ऑनवर्ड्स अभी क्या हो गया है, 2020 ऑनवर्ड्स क्या हो गया सर, अगर आप पहले 4 क्लॉजेस में फॉल नहीं होते but you have deposited money, please understand, you have deposited money in your current account, you have deposited money in your current account which is more than 1 crore rupees. बाप रे, you are depositing money more than 1 crore rupees in your bank account. We need to have your data. अगर आपका डेटा हमारे पास नहीं होगा तो फिर गलत है. आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट मारा है आपने, 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट मारा है, भले आपका इनकम पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमसे उससे लेना देना नहीं है. आप ऐसे एसएससी हो जिसका रिटर्न जाना मैंडेटरी होना चाहिए. तो एक ये बात हो गई सर, ये बात हो गई. दूसरी ये बात होगी कि अगर आपके पास ब्लैक मनी होगा, इमेजिन करो अगर आपके पास बहुत सारा ब्लैक मनी होगा तो डेफिनेटली आपके घर में इलेक्ट्रिकल चीजें जो होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी. आपके पास टीवीज होंगे, एयर कंडीशन होंगे, वॉशिंग मशीन होगा, आपके पास हीटर, वाटर हीटर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपके पास ब्लैक मनी ज्यादा है. अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है आपके पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है? क्योंकि आप पहले 4 पॉइंट्स में रिटर्न नहीं भर रहे हो और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है, 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो डेफिनेटली यू आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो वो सर आपके लिए फिर क्या हो रहा है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न इंडिया में मैंडेटरी है. और तीसरी बात ऐसी होती है जिनके पास ब्लैक मनी होता है वो लोग यूजुअली फॉरेन टूर्स पे जाते हैं. अगर आप फॉरेन टूर्स पे ट्रैवलिंग पे खाली ट्रैवलिंग पे आपने 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया हुआ है इन अ ईयर, तो भी आपको फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी है. तो पहले रिटर्न्स के फॉर्म समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज सपोज्ड टू फाइल रिटर्न मैंडेटरी. तो इतने लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी है. और ये कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में ये सब बातें लिखी गई है. उसके अलावा 139(1) में क्या लिखा होता है? उसके अलावा ड्यू डेट्स लिखे होते हैं जो हमने पीजीबीपी में पढ़े थे. सर ड्यू डेट्स क्या है? नॉर्मल असेसी का ड्यू डेट होता है, नॉर्मल असेसी का ड्यू डेट होता है आपका, प्लीज अंडरस्टैंड करो, नॉर्मल असेसी का ड्यू डेट होता है 31 जुलाई ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. ओके, दिस इज द नॉर्मल असेसी. यूजुअली 31 जुलाई का ड्यू डेट होता है. अगर आप ऑडिट असेसी हो, मतलब आप कंपनी हो या आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो गवर्नमेंट ने इसे अभी अमेंड करके कर दिया 31 अक्टूबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. और अगर आप उसके भी आगे जाते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप उसके भी आगे जाते हो और आप बोलते हो कि सर मैं तो इंटरनेशनल असेसी हूं, मुझे तो कनाडा से रिपोर्ट मंगानी है, मुझे तो यूएसए से रिपोर्ट मंगानी है, तो अगर आप इंटरनेशनल टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन में फॉल होते हो, जहां पे एक सेक्शन है सेक्शन 92E, जहां पे सीए रिपोर्ट जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बना के लेना होता है, तो फिर आपका ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाता है 30 नवंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो ये ड्यू डेट से आप लोगों को इसके बारे में पहले से नॉलेज है. तो देख लेते हैं मॉड्यूल में अभी क्या क्या लिखा हुआ है. लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना. आई विल गो वेरी स्लो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको उसका पूरा फायदा उठाना है. आपको जहां पे भी डाउट है प्लीज पार्टिसिपेट करो, प्लीज रिप्लाई करो. आप लोग अनम्यूट करके भी मेरे से बात कर सकते हो, चैटिंग में तो कर ही सकते हो, ठीक है ना. लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आपको पूछना है, क्लेरिफाई करना है, आपको पेंडिंग नहीं रखना है. तो एवरी पर्सन मतलब कौन? इंडिविजुअल, एचएफ, वो सारे लोग होते हैं. बीइंग अ कंपनी एंड फर्म, इसको तो मैंडेटरी है, मैंने बोल ही दिया आप लोगों को. और बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म इफ इज द टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, क्लबिंग लगा के, for which
ही इज असेसेबल अंडर द एक्ट। लेकिन कौन सा सर, कौन सा? इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, ये सारे सेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए, रिवीजन भी करा के लिया हुआ है। एंड चैप्टर 6 से तो इतना इफेक्ट देने से पहले 80C से 80U तक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडेड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो जीटीआई आपका ज्यादा है, जीटीआई आपका ज्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इस पॉइंट में, बिफोर गिविंग कैपिटल गेन के एग्जम्पशन, कैपिटल गेन के एग्जम्पशन दिए बिना। ओके, शाल on or before due date furnish the return of his income for the year other than the person during the previous year in a prescribed form and verified in a prescribed manner। तो prescribed form क्या है? तो ये सारी लिस्ट हो गई फॉर्म्स की, और prescribed manner इलेक्ट्रॉनिक, हमें जो अभी रिटर्न भरने होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से भरने पड़ते हैं। सर रिटर्न भरना ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? ऑब्वियसली अगर आप ऊपर के कंडीशंस में फॉल हो जाओगे तो मैंडेटरी है। सर ये यहाँ पे किसकी बात की है? यहाँ पे बात की है एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में वो लोग ओआर की बात कर रहे हैं, और कंपनी, फर्म, एलएलपी इनके केस में वो लोग रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एनी पर्सन हो बीइंग अ रेसिडेंट एंड अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और आपने अभी तक ऊपर की क्लॉजेस की वजह से टैक्स नहीं भरा है, बट आपका बेनिफिशियल ओनरशिप है इन अ असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तुम तो इंटरनेशनल प्लेयर निकले, अब तुमसे अगर टैक्स नहीं लेंगे या तुम्हारा इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? या तो आप बेनिफिशियरी हो आउटसाइड इंडिया, या तो आपके पास साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। भैया आपका अकाउंट है स्विट्जरलैंड बैंक में, आपका पनामा पेपर्स में नाम आया हुआ है, आपका दुबई में, कनाडा में प्रॉपर्टी मिला हुआ है, आपका रिटर्न तो लेना मैंडेटरी है। और इसका इफेक्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में एक एंटी ब्लैक मनी एक्ट है। अगर ये तुमने अगर रिपोर्ट नहीं किया ना अभी, तो इनकम टैक्स जैसा एक एक्ट है पूरा का पूरा नया, उसको एंटी ब्लैक मनी एक्ट बोलते हैं, वो मैं आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ाऊंगा। तो इसको इतना लाइटली मत लो, उस एक्ट को जब हम चालू करेंगे तो फिर से इस पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी। हाँ, अगर बेनिफिशियल ओनर आप हो और आपकी मम्मा जो है वो बेनिफिशियरी है, ठीक है ना, और आपने अगर रिटर्न भर दिया तो बेनिफिशियरी को भरने की जरूरत नहीं है। सेम असेट के लिए दो दो असेट्स का रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक्सेप्शन में लिखा है, इतना कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशन है बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी का, आप देख सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मैंडेटरी फर्निशिंग रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं 7th प्रोवाइजो टू 139(1). जब आप प्रैक्टिकली काम चालू करोगे तो एक रिटर्न में एक क्वेश्चन पूछा होगा, आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर 7th प्रोवाइजो टू 139, तो उसको नो करना प्लीज, ठीक है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? नो। अगर आपने उसको गलती से भी यस किया, मतलब आप गलती से भी इस किसी भी कंडीशन में फॉल होते हो, स्क्रूटिनी पक्का है आपका। सर स्क्रूटिनी मतलब क्या? आपका 143(3) होगा, डिपार्टमेंट आपको जरूर बुलाएगा इंक्वायरी करने के लिए। सर ये 7th प्रोवाइजो में क्या क्या आता है? वही मैंने बोला कि आपने डिपॉजिट मारा है आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट मारा है करंट अकाउंट में जो अपनी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में रखा हुआ है, या आपने इनकर्ड किया एक्सपेंडिचर कितना, अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख ऑन हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, ठीक है ना, या तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया। ये सारे नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इन लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि मैंडेटरी किसको है। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो।